Hi learners, welcome back to my YouTube channel Psychology Globe. I am Simran and I hope you all are doing well. So I am starting up with something new on this channel. Till now I have given some random lectures on the topics of basics of psychology and I have given some talk sessions. But so far I've seen that they have not been very useful for the beginners of psychology. So now I have decided to first give a complete lecture series on class 11th and class 12th NCERT textbook of psychology. So today I'll be starting up with first chapter of class 11 textbook, which is named as What is Psychology. I'll be using both the languages so it's not difficult for the people who have difficulty in understanding English. So let's start. So the chapter begins with what is psychology. Psychology का मतलब क्या है? So the basic is that psychology is derived from two Greek words. So this is a very important question for 1 mark. Psychology दो Greek शब्दों से बना है. Psyche meaning soul, soul यानी कि हमारा मन या आत्मा, and logos means study or the science of a particular subject. So psychology is translated as study of the soul or mind. But ये बहुत पुरानी definition है. The new definition is psychology is defined formally as a science which studies mental processes, experiences and behavior in different context. अब ये 3 लाइन की डेफिनेशन है लेकिन इसमें समझने के लिए बहुत कुछ है. साइकोलॉजी इज़ डिफाइंड फॉर्मली एज अ साइंस. तो पहली बात तो ये है कि साइकोलॉजी को एक साइंटिफिक सब्जेक्ट माना जाता है. क्यों माना जाता है, विल डिस्कस इट लेटर. देन नेक्स्ट इज इट स्टडीज़ मेंटल प्रोसेस. मेंटल प्रोसेस क्या होता है, एक्सपीरियंस क्या होता है और बिहेवियर क्या होता है. सो लेट्स स्टार्ट. When we say experiences are internal to the experiencing person, we refer to states of consciousness or awareness or mental processes. तो वो mental processes वो सारे process हैं जो हमारा mind करता है जब हम कोई भी problem को solve करने की कोशिश करते हैं, कुछ याद करने की कोशिश करते हैं या कोई knowledge लेने की कोशिश करते हैं. Next है experience. Experience हिंदी में इसको कहते हैं अनुभव. एक्सपीरियंस क्या होता है, जो हमारे साथ इंसिडेंट्स लाइफ में हुए हैं. एक्सपीरियंसेस आर सब्जेक्टिव इन नेचर. सब्जेक्टिव मतलब हर इंसान का एक्सपीरियंस अलग अलग होगा, हर इंसान का एक्सपीरियंस सेम नहीं हो सकता. तो एक्सपीरियंसेस को ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक्सपीरियंसेस सबके सेम नहीं होते. नेक्स्ट इज़ बिहेवियर. बिहेवियर होता है कि कोई भी सिचुएशन में हम कैसा रिएक्ट करते हैं. Behaviors are responses or reactions we make or activities we engage in. Then again behaviors are also different for different people. हो सकता है कि एक इंसान एक particular situation में बहुत ज़्यादा काम रहे और दूसरा इंसान उसी बिल्कुल सेम situation में बहुत differently या बहुत angrily react करे. So whenever you have to give the definition of psychology for 2 marks, तो definition के साथ साथ give definition of mental processes, experiences and behavior as well. Now next important thing is psychology a natural science or a social science? उसके पहले लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन. एज अ सब्जेक्ट साइकोलॉजी क्या है. सो साइकोलॉजी इज़ द ऑब्जेक्टिव स्टडी ऑफ बिहेवियर. ऑब्जेक्टिव स्टडी क्या होता है कि जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करते हैं कि वो ऑब्जेक्टिवली स्टडी करें ह्यूमन बिहेवियर को. ऑब्जेक्टिवली मतलब वो अपने बायसेस को बीच में लेकर ना आए. जो एक लेमैन की इंटरप्रिटेशन है और एक साइकोलॉजिस्ट की इंटरप्रिटेशन है सेम सिचुएशन के लिए, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगी क्योंकि साइकोलॉजिस्ट हमेशा ऑब्जेक्टिव तरीके से हर सिचुएशन को समझने की कोशिश करेगा. Next is this is a very important question for 1 marks. When was the first laboratory of psychology established? So first laboratory of psychology was established in 1879 in Leipzig, Germany by Wilhelm Wundt. अब आगे आते हैं साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस. तो क्या साइकोलॉजी नेचुरल साइंस है या सोशल साइंस है? इसका सीधा आंसर ये है, साइकोलॉजी दोनों है. साइकोलॉजी इज़ अ नेचुरल साइंस एज वेल एज अ सोशल साइंस. तो
पहले रीज़न समझते हैं कि साइकोलॉजी नेचुरल साइंस क्यों है। नेचुरल साइंस साइकोलॉजी सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो साइंटिफिक मेथड्स को फॉलो करती है। साइकोलॉजी में हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस मतलब किसी भी प्रॉब्लम का पॉसिबल सल्यूशन, फिर उस पे साइंटिफिक मेथड्स के साथ रिसर्च करते हैं और फिर उस हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं। ये वही मेथड है जो नेचुरल साइंसेस में फॉलो होता है। दैट्स वाई साइकोलॉजी इज़ कंसिडर्ड एज अ नेचुरल साइंस। उसके बाद आता है साइकोलॉजी सोशल साइंस क्यों है। साइकोलॉजी सोशल साइंस इसलिए है क्योंकि वो ह्यूमन बींग्स के सब्जेक्टिव बिहेवियर के साथ डील करती है। अब जो ह्यूमन बींग्स हैं वो आइसोलेशन में नहीं रहते। ह्यूमन बींग्स आर सोशल बींग्स, दे इंटरैक्ट विद अदर ह्यूमन बींग्स एंड दिस इज़ द रीज़न वाई साइकोलॉजी इज़ कंसिडर्ड एज अ सोशल साइंस, बिकॉज ह्यूमन बिहेवियर पे सोसाइटी का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है और एक पर्टिकुलर ह्यूमन का बिहेवियर भी सोसाइटी को इफ़ेक्ट करता है। सो इट्स अ वाइस वर्सा और टू वे रिलेशनशिप। दैट्स वाई साइकोलॉजी इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ सोशल साइंस। सो व्हेनेवर क्वेश्चन आता है कि साइकोलॉजी का नेचर क्या है, तो नेचर में ये दोनों चीज़ें आएंगी कि साइकोलॉजी नेचुरल साइंस भी है और साइकोलॉजी सोशल साइंस भी है। और उस इनफ एंड दिस इज़ नॉट ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू. Now next let's move on evolution of psychology. Under evolution of psychology we will study how psychology has evolved as a discipline. साइकोलॉजी में क्या क्या चेंजेस आए, वो शुरू कैसे हुआ और एट प्रेजेंट साइकोलॉजी को कैसे देखा जाता है, कैसे समझा जाता है. सो लेट्स स्टार्ट. सो साइकोलॉजी एज अ फॉर्मल डिसिप्लिन, एज अ फॉर्मल साइंस वो इस्टेब्लिश हुआ 1879 में, जब विल्हेम वुंट ने फर्स्ट साइकोलॉजी लेबोरेटरी बनाई लिप्जिग जर्मनी में. सो विल्हेम वुंट इज़ कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ द फर्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी नोन एज स्ट्रक्चरलिज्म. अब स्ट्रक्चरलिज्म क्या पढ़ता था? स्ट्रक्चरलिज्म पढ़ता था कि माइंड का स्ट्रक्चर क्या है, माइंड बना कैसे हुआ है. So, Wilhelm Wundt focused on the process of introspection. विलियम वुंट क्या कहते थे कि जब हम अपने आप को समझते हैं तो हम साइकोलॉजी को समझते हैं. इंट्रोस्पेक्शन वॉज अ प्रोसीजर इन विच इंडिविजुअल्स और सब्जेक्ट्स इन साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स were asked to describe in detail their own mental processes or experiences. तो विलियम वुंट क्या करते थे, अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना होता था तो जो भी सब्जेक्ट्स या पार्टिसिपेंट्स होते थे वो उनको खुद पूछते थे कि आपको क्या फ़ील हो रहा है, आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा. सो ये स्कूल ज़्यादा देर तक नहीं चल सका बिकॉज इसकी क्रिटिसिज्म काफ़ी थी. इसकी पहली क्रिटिसिज्म तो यही थी कि ये ऑब्जेक्टिव नहीं है. जब हम इंसान को खुद उसके बारे में पूछ रहे हैं तो नेचुरल सी बात है वो अपनी सब्जेक्टिव फीलिंग्स बताएगा. नेक्स्ट स्कूल जो पॉपुलर हुआ दैट वाज इस्टेब्लिश्ड बाय विलियम जेम्स. विलियम जेम्स ने फंक्शनलिस्ट स्कूल को फाउंड किया और विलियम जेम्स इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, इन्होंने माइंड के फंक्शन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी. वो पढ़ते थे कि जो माइंड है वो कैसे हमारी जो सराउंडिंग्स हैं उनमें अडेप्ट करने के लिए हमारी हेल्प करता है और मेंटल प्रोसेसेस एक्चुअल में उनका फंक्शन क्या है. नेक्स्ट वॉज जीस्टॉल्ट साइकोलॉजी. जीस्टॉल्ट साइकोलॉजी जर्मनी में ये स्कूल पॉपुलर हुआ था और जीस्टॉल्ट साइकोलॉजी का मेन फोकस था परसेप्शन मतलब हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको हम किस नज़रिए से देखते हैं. इनका सबसे जो इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क स्टेटमेंट ये था कि what we experience is more than the inputs received from our environment. इनका कहने का मतलब ये था कि अगर हमें इन्वायरमेंट में से 4 चीज़ें महसूस हो रही हैं तो जो हमारा ओवरऑल परसेप्शन होगा वो उन 4 चीज़ों के सम से काफ़ी ज़्यादा होगा. कि जो हमारा माइंड है वो किसी भी चीज़ को सिंगल परसीव नहीं करता, हम सारी चीज़ों को इंटीग्रेट करके परसीव करते हैं. वी इंटीग्रेट everything in our surrounding and we perceive them as a whole. Next popular school of psychology was behaviorism. Behaviorism has been very important and one of the landmark schools of psychology and it is still relevant in the modern day era.
बिहेवियरिस्ट समझते थे कि जो साइकोलॉजी है उसको वही पढ़ना चाहिए जो ऑब्जर्व कर सकते हैं. साइकोलॉजी शुड नॉट स्टडी एनी प्रोसेस दैट इज़ अंडरलाइंग इनसाइड. साइकोलॉजी शुड ओनली स्टडी व्हाट इज़ विजिबल, व्हाट इज़ ओवर्ट. इस स्कूल की सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म यही थी कि जो बिहेवियर होता है वो इंटरनल प्रोसेसेस से बनता है, और अगर हम उन इंटरनल प्रोसेसेस को ही नहीं पढ़ेंगे तो हम साइकोलॉजी को एज अ कंप्लीट, एज अ होल हम उसको नहीं समझ सकते. नेक्स्ट स्कूल वॉज साइकोएनालिटिक स्कूल. Psychoanalytic school was founded by one of the most popular names in psychology, Sigmund Freud. फ्रॉयड मानते थे कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो हमेशा गलत चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं. वो सेक्सुअल डिज़ायर्स और अनवांटेड डिज़ायर्स में ज़्यादा अपनी जो है कंसंट्रेशन रखते हैं, और इसी की वजह से उनको मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं. नेक्स्ट पॉपुलर स्कूल वाज ह्यूमैनिस्टिक पर्सपेक्टिव. ह्यूमैनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल स्कूल जो है वो कार्ल रॉजर्स और अब्राहम मास्लो ने फाउंड किया था, और दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव स्कूल. सिगमुंड फ्रॉयड वो एक नेगेटिव व्यू रखते थे ह्यूमन बिहेवियर के टुवर्ड्स, एंड ह्यूमैनिस्टिक स्कूल वाले हैं वो एक पॉजिटिव व्यू रखते थे टुवर्ड्स ह्यूमन बींग्स. वो कहते थे कि ह्यूमन बींग्स में पूरा पोटेंशियल है अपने आप को एक्सप्लोर करने का, ग्रो करने का. उसके लिए उनको ह्यूमन फ्रीडम देनी पड़ेगी और उनको डिग्निटी देनी पड़ेगी ताकि वो अपने पूरे पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर सकें. सो राइट नाउ साइकोलॉजी को बायोसाइको सोशल अप्रोच से ही ज़्यादातर स्टडी किया जाता है. बायोसाइको सोशल अप्रोच मतलब कि जो ह्यूमन बिहेवियर है दैट इज़ neither completely biological nor psychological nor social. Human behavior is a sum of all these. हमारा कोई भी पर्टिकुलर बिहेवियर है उसमें सोसाइटी का भी रोल है, उसमें हमारी साइकोलॉजी, हमारी इंडिविजुअल साइकोलॉजी का भी रोल है, और हमारे पर्टिकुलर इमोशंस जो है उनका भी रोल है. नेक्स्ट इज़ डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया. So this is important for 3 marks and 5 marks as well. 5 marks में this is not very popular, but in 3 marks this is a frequent question. तो साइकोलॉजी जो है इंडिया में फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी कैलकटा यूनिवर्सिटी में खुला. कैलकटा यूनिवर्सिटी में फर्स्ट सिलेबस ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी वॉज इंट्रोड्यूस्ड एंड द फर्स्ट साइकोलॉजी लेबोरेटरी वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1915. Calcutta University started the first department of psychology in the year 1916 and another department of applied psychology in 1938. So there's not much to understand in this paragraph. This is all cramming part, तो इसको सिर्फ याद करना है. Be very specific about the dates and names. Next are the popular branches of psychology. Branches of psychology means कौन से areas हैं psychology में जहाँ पे आप काम कर सकते हैं and which are very popular. तो सबसे पहली है cognitive psychology. Cognitive psychology वो पार्ट है साइकोलॉजी का जो हमारे मेंटल प्रोसेसेस को स्टडी करता है, जो स्टडी करता है कि हम कैसे इंफॉर्मेशन अपने इन्वायरमेंट से एक्वायर करते हैं, कैसे उसको अपने माइंड में स्टोर करते हैं, अपनी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे मैनिपुलेट करते हैं, और कैसे उस इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ हम एक्सचेंज करते हैं. तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी में जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं विच आर स्टडीड आर अटेंशन, परसेप्शन, मेमोरी, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग. सो फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर आपको याद करना है देन 5 to 6 लाइन्स ऑफ ईच ब्रांच आर इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट इज़ बायोलॉजिकल साइकोलॉजी. बायोलॉजिकल साइकोलॉजी बेसिकली स्टडी करती है व्हाट इज़ द रिलेशनशिप ऑफ ब्रेन एंड योर साइकोलॉजी, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप ऑफ ब्रेन एंड बिहेवियर, कि कैसे हमारे जो नर्वस सिस्टम के फंक्शंस हैं, कैसे हमारे जो ब्रेन के फंक्शंस हैं वो हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं. नेक्स्ट इज़ न्यूरोसाइकोलॉजी. सो न्यूरोसाइकोलॉजी बेसिकली स्टडीज़ द इंटीग्रेशन ऑफ नर्वस सिस्टम एंड साइकोलॉजी, कैसे हमारा जो नर्वस सिस्टम है, हमारे न्यूरॉन्स हैं, उनकी फंक्शनिंग हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेगी. नेक्स्ट इज़ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी. डेवलपमेंटल साइकोलॉजी पढ़ती है कि एट वेरियस स्टेजेस ऑफ लाइफ कैसे एक छोटा बच्चा होता है, फिर उस एडोलसेंट स्टेज आती है, फिर टीन एज आती है, फिर एडल्टहुड आता है, और फिर
ओल्ड एज आती है, तो कैसे एट दीज वेरियस स्टेजेस ऑफ लाइफ ह्यूमन बींग्स ब्रेन इवॉल्व्स, ह्यूमन बींग्स मेंटल फंक्शंस इवॉल्व, और कैसे जो हमारे ब्रेन के माइंड के फंक्शंस हैं वो हमारी डेवलपमेंट पे इन्फ्लुएंस डालते हैं। नेक्स्ट इज़ सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी पढ़ती है कि एक ह्यूमन बीइंग है, उसका बिहेवियर उसके सोशल इन्वायरमेंट से कैसे अफेक्ट होता है। अगर फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, उसको हम एक बहुत नर्चरिंग इन्वायरमेंट दे रहे हैं, उसको अच्छी बुक्स मिल रही हैं, उसको अच्छी स्कूलिंग मिल रही है, तो उसका जो मेंटल फंक्शनिंग है वो कैसे डिफरेंट होगा कंपेयर टू अ चाइल्ड हु इज़ लिविंग इन वेरी अंडर डिप्राइव्ड कंडीशंस, जिसके पास बेसिक्स तो क्या, खाना भी नहीं है 2 टाइम का। सो उसकी साइकोलॉजी और एक वेल टू डू चाइल्ड की साइकोलॉजी में क्या डिफरेंस होगा। सो सच कॉन्सेप्ट्स आर अ पार्ट ऑफ सोशल साइकोलॉजी। नेक्स्ट इज़ क्रॉस कल्चरल एंड कल्चरल साइकोलॉजी। नाउ जो हमारा बिहेवियर है उसमें हमारे कल्चर का भी रोल होता है। कुछ बिहेवियर्स एक कल्चर में अप्रोप्रिएट हैं, फॉर एग्जाम्पल calling your teacher by their name, it is a very normal thing to do in western countries, but अगर हम यही चीज़ इंडिया या किसी भी एशियन कंट्री में करें, सो दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ डेविएंट और रॉन्ग बिहेवियर। तो हमारा कल्चर भी हमारे बिहेवियर को बहुत रेंज तक इन्फ्लुएंस करता है। दैट्स वाई क्रॉस कल्चरल एंड कल्चरल साइकोलॉजी इज़ एन इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। नेक्स्ट इज़ इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी। इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी स्टडी करती है कि जो हमारे फिज़िकल फैक्टर्स हैं, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, पोल्यूशन है, ये हमारी मेंटल फंक्शनिंग को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ देयर इज़ अ लॉट ऑफ पोल्यूशन वेयर यू लिव, यू विल बी हैविंग फिजिकल प्रॉब्लम्स एज वेल, बट यू विल ऑल्सो बी हैविंग सम मेंटल इशूज़। नेक्स्ट इज़ हेल्थ साइकोलॉजी। हेल्थ साइकोलॉजी deals with that how patients, especially the ones who are coping with serious diseases, how their mental functioning affects their physical functioning. This is a very popular notion कि अगर कोई इंसान बीमार होता है, अगर वो पहले ही अपने मन में सोच ले कि नाउ आई एम नॉट गोइंग टू सर्वाइव एनी मोर, देन हाई चांसेस आर देयर कि वो इंसान सच में नहीं सर्वाइव कर पाता, बिकॉज साइकोलॉजी डज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन योर फिजिकल फंक्शनिंग एज वेल। Next is clinical and counseling psychology. Clinical and counseling psychology, these are quite similar fields. There is only one difference. Clinical psychology की जो field है ये थोड़ी serious mental disorders like depression, anxiety, schizophrenia इनके साथ deal करते हैं, and counseling psychology they deal with less serious problems like deviant behavior, marital relationship problems. Clinical and counseling psychologist, there's a very huge and popular myth in the people who are not connected to psychology. They think that clinical psychologists are doctors. They are not doctors, they are साइकोलॉजिस्ट। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ साइकेट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट इज़ कि एक साइकेट्रिस्ट है जो वो मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब कर सकता है, वो सर्जरी कर सकता है, बट द सेम इज़ नॉट द केस विद द क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। दे कैन ओनली प्रोवाइड थेरेपीज़। Next is industrial and organizational psychology. So industrial psychologists they basically work in big firms and industries. तो वो वहाँ पे जो है एम्प्लॉयर रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। वो एम्प्लॉयर्स में कोऑर्डिनेशन बनाने की ट्राई करते हैं, एंड दे ऑल्सो ट्राई दैट पीपल आर गिवन वर्क अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज़। जो जिसमें स्पेशलिटी है उसको वो ज़्यादा काम दिया जाए, और जिसमें अगर कोई स्पेशलिटी नहीं भी है तो वो उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए। नेक्स्ट इज़ एजुकेशनल साइकोलॉजी. So educational psychologists, they most of the time work in colleges, schools, and they focus on the student problems कि students को interaction में problem आ रही है, कोई intellectual problem है, social problem है, emotional problem है, they are going to deal with these problems. Next is sports psychology. So this is also a very emerging field in psychology. Sports psychologists, they work with sports persons in order to motivate them and in order to balance their psychological reasoning. Next is themes of research in application. So this is also not a very important concept. One reading for this concept is enough.
Next is psychology and other disciplines. How psychology is related with other social science disciplines and other medical disciplines as well. So फर्स्ट इज़ फिलोसफी. सो जो साइकोलॉजी का ओरिजिन है वो फिलोसफी में से ही हुआ है. फिलोसफर्स ने जब ह्यूमन माइंड के रिलेटेड, ह्यूमन बिहेवियर के रिलेटेड क्वेश्चंस पुट करने शुरू किए, दे रियलाइज्ड दैट देर आर सर्टन क्वेश्चंस दैट कैन नॉट बी आंसर्ड विदाउट प्रॉपर रिसर्च, एंड सच क्वेश्चंस दे came under the umbrella of psychology. Next is medicine. So how psychology is important in medicine, we've already discussed under health psychology, that your behavior, your thinking, it influences and it also determines what kind of recovery you are having from a particular disease, or what are your chances of having a particular disease. नेक्स्ट इज़ इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड सोशोलॉजी. सो इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए पॉलिटिकल साइंस, सो दीज आर ऑल द फील्ड्स विच आर रिलेटेड टू पीपल. सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ पीपल, you have to understand the functioning of their mind, how they think, what are their perceptions on various topics. So in order to understand their perceptions on politics, economics, it's very important to understand their psychology. Next is computer science. Computer science, so this is an emerging field or emerging interrelationship of psychology with another discipline. So computer science, they study psychology in order to create information technology, IT, and they coordinate programs, how the computer programs are coordinated, how they are structured, how memory is organized, how sequences are made, and how the information is processed. उसके बाद है law and criminology. Law and criminology, it is very important to understand कि जब एक criminal एक particular crime करता है तो उसकी intention को बहुत ज़रूरी है समझना. If there was no intention of committing a crime and it was a mere mistake, so there's a big gap in the punishment. So the lawyers and the criminologists, they understand that whether the person was actually having the intention or not, and this is possible by studying psychology. Next is mass communication. Mass communication, the print media, newspapers, televisions, they influence our mind to a great extent. So the people working in mass media, they study that what are the things that attract the human mind and how to promote the products in a better manner. Music and fine arts, the people who are having a natural inclination towards music and art, they are the people who are going to excel in it. So it's very important to understand the psyche of a person before understanding their intellect in music or art. So next is psychologist at work. So this is quite similar to what we have studied under branches of psychology. So one reading of this topic is enough. Next is psychology in everyday life. तो इस paragraph में, now this at times comes for 3 marks. So what is the basic purpose of psychology? Why we are studying psychology? Psychology is studied in order to improve the living standard or improve the living conditions of people, because if you are having a healthy mind, then only you can have a healthy body, and vice versa. So it's very important to solve the mental conflicts in order to live a healthy life. So this was all about chapter 1 of psychology. I intended to complete only half part of it, but since it is a very easy and crisp chapter, I have completed the whole of it in one video. In next video, I'll be starting with methods of inquiry in psychology. Since this is a complex chapter for the beginners, so I'll be covering it in 2 portions. If you have any doubts, queries, please post them in comment section, as I'll reply them. So till then, take care. Goodbye.